Hello, good evening everyone. Myself Pawan Jain and I am Senior Research Analyst at StockEdge. Today we will cover four features from StockEdge, that is market breadth, derivative analytics, sector rotation and sector analytics. After me, Rajuji will cover the strategy part. So let's start with market breadth and how we can use it. Okay. So this is basically market breadth. यहाँ पे सारे इंडाइसेस का जो लिस्ट है वो आप लोग को मिल जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड and these are the criterias: RS above 0, SMA 20, 50, 100 and 200, and how many stocks from these particular indices are fulfilling all the above criterias. So in Nifty 50 we can see that yesterday only 50% stocks were RS positive, 74% stocks were trading above 20 SMA, 50 SMA के ऊपर 86% stocks थे, 100 SMA के ऊपर 90 and 92% stocks that were trading above 200 SMA. By clicking here, we can also check day by day performance, day by day breadth of Nifty. So clearly after 1-2 days, Nifty slowly started some strength, पर उतना ज्यादा स्टॉक जो आरएस के ऊपर नहीं थे. एंड नेक्स्ट, अगर ब्रॉडर मार्केट देखना है, इफ यू वांट टू check the study the broader view of the market, broader sense of the market, then we can also check Nifty 500. That can give us the broader picture of the market. Slowly यहाँ पे भी डेटा थोड़ा स्ट्रांग हो रहा था. और निफ्टी बैंक वी कैन सी कि निफ्टी बैंक में डेटा वीक है. और निफ्टी आईटी काफी स्ट्रांग है. आईटी इज डूइंग गुड. सो बाई checking all this oil and gas, this sector is doing good. This indices is doing good. So we can say कि निफ्टी 50 500 में से निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी. निफ्टी आईटी इज डूइंग गुड, निफ्टी ऑटो इज डूइंग गुड, एनर्जी, ऑयल एंड गैस. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंडाइसेस वेयर वी शुड फोकस ऑन. इन इंडाइसेस में जो स्टॉक्स रहेंगे उन पे फोकस करना चाहिए हम लोग को. नेक्स्ट इज पीरियडिकल हाई लो. इसमें भी वी कैन चेक 3 month, 1 month, 6 month and 1 year का high low. By clicking here, you can see day by day performance of the high zone, low zone and mid zone. So how many stocks from that particular indices are trading in the low zone or high zone. So high zone पे जितने ज्यादा stocks trade करेंगे, मतलब हम guess कर सकते हैं कि नहीं वो indices थोड़ा अभी ओवरस्ट्रेच हो चुका होगा. सो दिस बेसिकली हम लोग को एक कॉन्ट्रेरियन व्यू दे देता है. ओके. एंड लास्ट वन इज एडवांस एंड डिक्लाइन. वी कैन चेक हाउ मेनी स्टॉक्स फॉर लास्ट फ्यू डेज दैट आर क्लोज इन एडवांस और डिक्लाइन. की जैसे लास्ट डे 33 स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी 50 जो पॉजिटिव क्लोज हुए थे और 17 stocks were closed in red. We can also check the monthly performance, advanced decline of Nifty 500. ऐसे सारे इंडाइसेस का ओवरव्यू हम लोग देख सकते हैं. सो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन है, वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट. ऑल ऑफ यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, देन आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस. How to identify which sector is up or down we will cover in sector rotation. इस मार्केट ब्रेथ में आप लोग को एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा. ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RS55? RS55 बेसिकली मींस RS इज इक्वल टू रिलेटिव स्ट्रेंथ. तो 55 डेज में निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है विज विच आर द स्टॉक्स और हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी इन 55 trading days. How to interpret? Sir, this data can help us, Dilip ji. Like we can see in Nifty Bank, so we can clearly see Nifty Bank
slowly after 5th July, the data is on the negative side. So we will not focus on banking stocks, rather than we will focus on IT stocks, oil and gas stocks, energy stocks, because data is strong there. This data can help us to filter the process, and our final decision should be on price action. Okay. So more the percentage, that means this is more bullish. If in a particular indices, suppose 80% stocks are trading up in IT, we can see 90% stocks are trading above 20 SMA. So short term में बोल सकते हैं कि नहीं, IT stocks are doing good, क्योंकि इसी indices के, इसी सेक्टर के 90% स्टॉक जो RS को भी बीट कर रहे हैं, SMA 2050 के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं. So this is bullish sign. Okay. Now let's move to the next part, that is derivative analytics. So derivative analytics में क्या होगा? We can see these are the stocks that are traded in FNO, और यहाँ पे OI trend मिल जाएगा. These are aggressive new long, new short. Okay, short cover, new short cover. This is spot price, cumulative OI, and this data is showing us the volume of लास्ट 5 days का कितना वॉल्यूम हुआ था, एंड द लोअर वन इज डिलीवरी, कि लास्ट 5 days का जो एवरेज डिलीवरी है उसका कितना ज्यादा डिलीवरी हुआ. तो हम लोग को फोकस करना है कि कहाँ पे डिलीवरी और वॉल्यूम काफी ज्यादा है. फ्रॉम हेयर वी कैन ऑल्सो फिल्टर एग्रेसिव न्यू लॉन्ग, एग्रेसिव न्यू शॉर्ट ऑल्सो. ओके, सो let me take one new aggressive long and one new aggressive short, so this can give you a clear picture of this feature. So in granules yesterday एक aggressive long हुआ था, इस पे build-up हुआ था, cumulative OI was up, plus see the volume and delivery was also very high. So once we get the data, let's move to the chart and see how price is behaving. See, from last few days जो ग्रैन्यूल्स का डेटा आ रहा था बाय क्लिकिंग है, सी ये इस पे एग्रेसिव लॉन्ग कब बना था, ऑन 30th जून जुलाई से इसमें एग्रेसिव लॉन्ग था, एंड वॉल्यूम एंड डिलीवरी वाज आल्सो हाई. एंड सी आफ्टर दैट इन लास्ट 2 days द स्टॉक इज मूविंग on the higher side. Okay, and let's take few stocks that are in aggressive new short. So we can see Birlasoft, India Mart, Exide. एक्साइड पे तो वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं था. इंडिया मार्ट और बिरला सॉफ्ट, दीज आर द टू स्टॉक्स वेयर वॉल्यूम डिलीवरी वाज वेरी हाई, प्लस एग्रेसिव न्यू शॉर्ट भी था, और क्यूमुलेटिव ओआई भी इसका ऊपर आया. सो लेट्स चेक बिरला सॉफ्ट. सी दिस इज द डेटा ऑफ 31st जुलाई ईयूडी बेसिस पे. तो कल हम लोग को डेटा मिल गया कि नहीं ये स्टॉक वीक है, और अब देखो आज उस पे फॉलो अप सेलिंग भी आया. दिस वाज द कैंडल ऑफ 31st जुलाई. आफ्टर दैट आज उस पे फॉलो अप सेलिंग आ गया, एंड दिस डेटा इज ऑल्सो showing the same. Next one is India Mart. Let's check India Mart. So India Mart, maybe we can see some follow up selling is happening from last day. So this data is helping us to identify stocks, to filter stocks on the long and short side, and after filtering the stock we can trade them in live market. Next is options. So options is basically, this is PCR, put call ratio.
हाउ मेनी पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग हैपेंड, पीसीआर का जो डेटा है वो 1 डे के अगेंस्ट में कितना चेंज हुआ, कि पीसीआर ऊपर गया है नीचे गया, स्पॉट प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ चेंज. ओके, सो we can see ICICI potential that is nearly PCR is near to 1. That means अभी अभी इस पे पुट राइटिंग ज्यादा होना स्टार्ट हो गया. दैट मीन्स पुट राइटर्स आर मोर एक्टिव ऑन द सेलिंग साइड, कि प्राइस, वो लोग चाहेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए, नीचे ना आए. और कहाँ से ये डेटा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ, कि जो 30 जुलाई को थोड़ा नीचे आया था, फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया. एंड वी सी फ्रॉम 23 जुलाई दिस डेटा इज स्लोली इम्प्रूविंग. एंड ऑल्सो लेट्स चेक कि फ्यूचर्स में क्या दिखा रहा है. ये शॉर्ट कवर हुआ था 38 जुलाई को, और 31 जुलाई को न्यू लॉन्ग हुआ. सो ये दोनों पॉजिटिव साइन हो गए कि नहीं, शॉर्ट भी कवर हो रहा है, न्यू लॉन्ग was there, plus option data is also telling us that more put writers are active in that particular stock. So let's check what happened in ICICI Prudential. See, ये 30 जुलाई का डेटा था. सो द स्टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग. जब भी इस पे बाइंग साइड में डेटा मिलेगा, बेसिकली स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना है. whenever we get any trade on the higher side, on the buying side, we will try to trade on that particular stock. So this is basically option that can help us to identify कहाँ पे डेटा और अच्छा हो रहा है. सी Zydus Life, जो पीसीआर 0.75 था, 72 था, स्लोली द पीसीआर इज इम्प्रूविंग. नाउ द पीसीआर इज ऑलमोस्ट एट 1. एंड फ्यूचर्स में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे भी शॉर्ट कवर हुआ है. सो लेट्स चेक एक बार Zydus में क्या हुआ. आज ऊपर गया स्टॉक पर टिक नहीं पाया, बट बेसिकली द ट्रेंड इज ऑन द अपर साइड. सो वी शुड ऑल्सो ट्रैक दैट स्टॉक, कि स्टॉक में क्या हो रहा है. ओके, सो दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव एनालिटिक्स सेशन, हाउ वी कैन यूज दैट. लेट्स क्विकली check few questions, then we will add to the another part. सर व्हाट इज एग्रेसिव शॉर्ट? एग्रेसिव शॉर्ट मतलब क्या हुआ कि नहीं, प्राइस भी नीचे जा रहा है, क्यूमुलेटिव ओआई इज आल्सो अप. ओके, आप लोग देखना चाहो तो यहाँ पे आप लोग को सारा कुछ दिखा देगा. ऑल ऑफ यू कैन हाउ टू यूज दैट एंड ऑल दैट. शॉर्ट कवर जहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स ओपन थे, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो रहा है. दैट मीन्स इफ यू आर ऑन द शॉर्टर साइड, आपने शॉर्ट किया है, तो वहाँ पे आप यू कैन बुक योर फ्यू प्रॉफिट्स ऑल्सो. प्लीज एक्सप्लेन वॉल्यूम एंड डिलीवरी वंस. सो सी हेयर, ग्रेनुल्स का वॉल्यूम एंड डिलीवरी, दिस इज 5.5x एंड लोअर वन इज 5x. सो अपर वन इज बेसिकली लास्ट 5 डे का जो एवरेज वॉल्यूम है, उसका कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ. तो यस्टरडे ग्रेनुल्स में 5x वॉल्यूम हुआ था, एंड डिलीवरी वॉज एवरेज 5 डेज का जो वॉल्यूम डिलीवरी है, उसका 5x डिलीवरी हुआ था, 5 टाइम्स डिलीवरी हुआ था. ओके, please explain PCR. PCR is basically put call ratio. If PCR is more than 1, that means more put writers are active in that particular stock. Let me take an example. सो हम लोग जो आईसीआईसीआई पोटेंशियल के एग्जांपल लिए थे, आप देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओआई दैट इज ऑन द पुट साइड, दैट इज 45 lakhs 42,000, एंड कॉल की साइड में 40,83,000 है. सो वी कैन क्लियरली सी द 1.1 टाइम्स ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है इन ICICI पोटेंशियल. सो दिस इज
positive sign for us because more put writers are active. So there is probability कि price ऊपर की तरफ जाएगा. Okay. So now let's move to our next feature, that is sector rotation. So sector rotation पे दो level है, basically level 1 and 2. So this is level 1. ये हम लोग को एक डेटा दे देगा. These are the sectors. हम लोग उसका ब्रेथ देख सकते हैं, डिलीवरी देख सकते हैं, एंड वीवेब से समझ सकते हैं कि which are the sectors that are doing good. See, in telecom 96% stocks are RS positive. RS 50 के ऊपर 98% stocks है, 89% stocks are. So these are the criteria that are fulfilled by all these stocks. Right? इसके बाद हम लोग को और डीप एनालिसिस करने के लिए लेट्स क्लिक हेयर, लेट्स एंड सी कि इसका डे बाय डे ब्रेथ क्या हो रहा है. दिस इज बेसिकली लेवल 2 रिसर्च. मैं एक बार और दिखा देता हूँ. ये डेटा मिलने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं. दीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर डूइंग गुड. ट्रांसमिशन टावर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. सो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में 10 लाख मार्केट कैप है टोटल शेयर्स के, तो इस पर एक बार बड़ा इंडस्ट्री इस पे जाते हैं. एंड फ्रॉम 26 जुलाई के बाद में 29 जुलाई से ये जो डेटा है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया. सी, फ्रॉम 24 जुलाई ओनली 34% स्टॉक्स वेयर अबव 20 SMA, और RSI 50 के ऊपर सिर्फ 34% स्टॉक्स थे, जो कि डेटा स्लोली स्लोली इंप्रूव हो रहे हैं. अब एक बार स्ट्रॉन्ग सेक्टर मिल गया कि नहीं, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में डेटा स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर स्ट्रॉन्ग है. अब हम लोग को स्टॉक कैसे मिलेगा? सो लेट्स मूव टू टेक्निकल्स. दीज आर द criteria that you can check to identify strong stocks. जिसमें 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, SMA, EMA, पिवट, बॉलिंजर बैंड, ऑल द थिंग्स आर देयर. आप लोग को जो भी यूज करना आप लोग कर सकते हो. दिस इज EMA बेसिकली. दीज आर द 5 EMAs. आई पर्सनली यूज दिस फीचर and we will focus on these stocks that are trading above all the moving averages. So जो भी शॉर्ट टर्म में भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, दैट मीन्स these stocks are really strong. So let's check what happened in LT. और अब अगर मूविंग एवरेज लगा दूं यहाँ पे, so let's see कि लास्ट फ्यू डेज से जो डेटा हम लोग को दिखा रहा था, द डेटा वाज शोइंग फ्रॉम 26 जुलाई एंड 24 जुलाई द सेक्टर वाज शोइंग स्ट्रेंथ. और ये था 26 जुलाई का कैंडल. और यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, so we can play the breakout. Okay, let's take one more example of another sector. See, और कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है. So these are the sector where, suppose banking, iron and steel, we can clearly see these are the sector that are not doing good. सब रेड 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 ऑरेंज यहाँ पे है. तो इन सेक्टर्स को हम लोग को फोकस नहीं करना है, अवॉइड करना है. ओके, लेट्स टेक कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मीडिया. दीज आर द स्टॉक्स और दीज आर द सेक्टर्स दैट आर डूइंग गुड. कंज्यूमर ड्यूरेबल, लेट्स टेक एक बार कंज्यूमर ड्यूरेबल देखते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है. सी, इन वॉचेस में 100% स्टॉक्स ऑलरेडी सारे क्राइटेरिया के ऊपर है. AC में भी, एयर कंडीशनर में भी ऑलमोस्ट 100% स्टॉक्स सबके ऊपर है. बट यहाँ पे देख रहे हैं इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जहाँ पे 87% स्टॉक अभी भी RS के ऊपर है, तो और इंप्रूवमेंट इसमें आ सकते हैं. एंड सी, डे बाय डे जो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक्स थे, उनमें भी स्लोली एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है. सो ऐसे ही जो सेक्टर इंप्रूव हो रहा है ना, वहां पे हम लोग को फोकस कर रहे हैं.
And next step is go to technicals and check which are the stock that are trading above all the moving averages. So Crompton Greaves, KTK Prestige, Whirlpool, okay, Symphony, IFB Industry. So these are the stock that are trading above all the moving averages. So let's take Symphony and IFB ones. See, Symphony is doing good. यहाँ पे एक स्विंग हाई है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है. सो दिस स्टॉक शुड बी इन आवर रडार बिकॉज द सेक्टर इज डूइंग गुड. IFB इंडस्ट्री. See, the stock is trading above all the moving averages. तो आप देखोगे एक लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट भी है इस पे. सो these are the stock that should be on our watch list. Okay, let's take Crompton Greaves once. Crompton Greaves आज एक विक बना के नीचे की तरफ आ रहा है, बट ये 20 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा है, दैट वी कैन से. So these are the stocks that should be in our radar because the sector is doing good. And next is deliveries. कि delivery के basis पे how we can identify which sectors are doing good, कौन से sector में अच्छा हो रहा है. So let's see industrial gases, retail, media. So एक बार retail में जाके देखते हैं. There are 65 stocks in that particular sector जहाँ पे पूरा सेक्टर पॉजिटिव क्लोज हुआ था. वॉल्यूम वाज 91% अप, प्लस डिलीवरी भी ऑलमोस्ट 99% ज्यादा था. बाय क्लिकिंग हेयर वी कैन सी कि रिटेलिंग में विच आर द स्टॉक्स दैट शोड गुड डिलीवरी और प्राइस भी ऊपर गया. सो यहाँ पे डिलीवरी का ट्रेंड दिखा देगा आप लोग को. 5 डे का एवरेज डिलीवरी कितने शेयर्स के हुए थे, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिलीवरी वैल्यू इन लैक्स. सो बेसिकली 353 करोड़ का डिलीवरी हुआ था इन एवेन्यू सुपरमार्ट. ओके, ट्रेंड में अच्छा डिलीवरी था कल. एंड V2 रिटेल ऑलमोस्ट 3x का डिलीवरी हुआ. सो एवेन्यू सुपरमार्ट, ट्रेंड, V2 retail, these are the stocks that showed good delivery yesterday. And now check the chart of those stocks. See, DMart after some pullback अभी एक रिटेस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं and showing some sign of reversal from there. Next was V2 retail. See, V2 retail तो ब्रेकआउट के बाद में काफी बढ़ चुका है. So these are the strong stocks on basis of deliveries. Those should be in our radar. And last one is VWAP, volume weighted average price. This is basically an indicator कि इस indicator के ऊपर और down which are the how many percentage of stocks from that particular sector are trading above or below this particular indicator. Okay, so we can find out strong sector on basis of deliveries. उसके बाद which are the stocks that are doing good on डिलीवरी के टर्म्स पे. मार्केट ब्रेथ के बेसिस पे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच आर द स्टॉक्स और विच आर द सेक्टर दैट आर शोइंग गुड स्ट्रेंथ ऑन डे टू डे बेसिस, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है. जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल पे देखे थे हम लोग, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में द डेटा इज स्लोली शोइंग स्ट्रेंथ. इम्प्रूव हो रहा है डेटा. जो 74% था वो 80 से 70 87% हो गया. जो 73% था
few days back वो 92 पे आ गया. Only 58% stocks that are trading above SMA 20. Now 88% stock from consumer durable are trading above 20 SMA. So in short, we have to find out which are the sectors that are doing good. After identifying strong sectors, our next step should be to identify strong stocks from that particular sector and keep in our watch list. जब भी प्राइस एक्शन या आपका सेटअप उस पे रहेगा, we will trade accordingly. Okay, let's quickly take few questions, then we will cover the last part. How to apply RS in trading view? Sir, RS का एक इंडिकेटर है यहाँ पे that you can use relative strength of a stock, and this is the setting. You can take a screenshot of that. Period will be 55 और comparative symbol जो होगा वो निफ्टी का होगा. So by default it will compare stocks vis-a-vis Nifty on 55 trading day. Okay. What should be the consider of percentage of to consider the strong sector? Strong sector के अब सर एटलीस्ट 50% के ऊपर, और जो डेटा धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, दैट मीन्स मोर सेक्टर्स आर more stocks are showing strength in that particular sector. RS setting is basically 55 days का रखना है सर आपको. Let me show you again. Just take a screenshot of this. Okay. How to calculate a particular stock? आपको स्टॉक कैलकुलेट नहीं करना है. वंस यू हैव गेट द डेटा ऑफ स्ट्रॉन्ग सेक्टर, नाउ आइडेंटिफाई उनमें से कौन सा स्टॉक एटलीस्ट सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है. इफ द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, दैट मीन्स द ट्रेंड इज ऑन द अपर साइड, the stock is showing strength. Now if you are a breakout trader, then you will try to find out a breakout. If there is any breakout, then you will trade that particular stock. Okay. Sir, how to create an आप trading view पे Ranjit sir, you can create your watch list. Like I have created a watch list. Just add stocks that are showing strength from any particular sector. You can add multiple stocks to your watch list. Okay. Price action basically means that you can check in time of breakout if there is a swing breakout with good volumes, then this will be a positive sign. Okay. Okay. I think there are no other questions regarding. No, I will not take stock regarding questions. Okay. So now let's move to the last part, that is sector analytics. Till now we are researching the sectors on the basis of technicals. So sector analytics can help us to identify strong sector जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर जिसका रिजल्ट काफी अच्छा है. And in results we can check sales data, EBITDA and PAT. So which are the sector जहाँ पे जैसे in consumer durables, from only 15 stocks out of 59 stocks have declared their results. तो slowly जब और भी डेटा आता जाएगा तो ये डेटा हम लोग को और अच्छा और एक्यूरेट पिक्चर दिखा देगा. So till now, from that 15 stocks, the entire sector quarter on quarter
हैज, जो ग्रोथ है सेल्स का, दैट इज ऑल मोर देन 20%, एंड ईयर ऑन ईयर 50% का ग्रोथ है। इन एबिटा टर्म्स में द मार्जिन हैज इम्प्रूव्ड बाय 7%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% का ग्रोथ है, एंड ऑलमोस्ट 69-70% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड इन पैट 17% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर का 93% growth है। By clicking here, we can see which are the stocks. Sorry. By clicking here, we can see which are the stock. Just current period पे देते हैं कि these are the stock that are 31st जून तक का रिजल्ट इन पे आ गया। सो डिक्सन, इसका जो सेल्स डेटा है उस पे सेल्स का इंप्रूवमेंट हुआ है 41% ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड ईयर ऑन ईयर 2x का जंप आया है इसमें। क्रॉम्पटन ग्रिप्स ने 9% का ग्रोथ दिखाया। वर्लपूल हैज गिवन ग्रोथ ऑफ 44% एंड ईयर ऑन ईयर 22% का। एक बार पैट देख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो वी कैन क्लियरली सी दैट डिक्सन इज डूइंग वेरी गुड, बिकॉज इसका 2x का पैट आया है, सेल्स इज ऑलमोस्ट 2x, so this is a very good number. Okay, PG Electroplast, so these are the stocks that should be in our radar. और जब भी इस पे प्राइस एक्शन आए, या आप लोग को सेक्टर रोटेशन पे जब भी ये सेक्टर मिले कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो अभी हम लोग देखें कि नहीं, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर इज डूइंग गुड, सो दीज आर द स्टॉक्स दैट शुड बी इन आवर रडार, बिकॉज टेक्निकली द सेक्टर इज डूइंग गुड, प्लस फंडामेंटली ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि उनका सेल्स और पैट ग्रोथ भी काफी अच्छा है। सो एक टेक्नो फंडा व्यू मिल गया हम लोग को, कन्विक्शन और ज्यादा होगा इस पे, क्योंकि टेक्निकली एंड फंडामेंटली बोथ आर द क्राइटेरिया फुलफिल्ड बाय द स्टॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग के थ्रू हम लोग सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप लोग को अगर देखना है कि वह विच आर द सेक्टर जहाँ पे प्रोमोटर FII एंड DIIs का स्टेक कम या ज्यादा हो। जैसे कि इन ट्रेडिंग ये डेटा दिखा रहा है कि इन ट्रेडिंग में धीरे धीरे DII का स्टेक ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड FIIs आर डिक्रीजिंग देयर स्टेक। सो अकॉर्डिंग टू योर, जैसा भी आपको पसंद है, यू कैन filter stocks according to your preferences. Okay, so this is basically sector analytics. This can help us to identify stocks or sector जो कि काफी अच्छा रिजल्ट और प्रॉफिट उसका आया है। ओके, नाउ टेक फ्यू क्वेश्चंस, देन आई विल कंक्लूड द सेशन। ओके, I will ask out PDO. Sir, where is PD? So please ask regarding the sector analytics. You can ask few questions. एग्जिट कैसे करें? इन एग्जिट आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे करेंगे, आपका जो सेटअप है। इफ द सेटअप इज शोइंग एग्जिट, देन यू विल एग्जिट फ्रॉम दैट सेक्टर। सर, RS का सेटिंग मैंने दिखा दिया। RS का जो फ्री हेड है, यू कैन सेट 55, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सेक्टर रोटेशन और सेक्टर रोटेशन पे जो भी डेटा आ रहा था सर, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स कि RS कितने पॉजिटिव है, कितने स्टॉक SMA के ऊपर चल रहा है। बट ये डेटा हम लोग को ये दिखाएगा कि फंडामेंटली विच आर द सेक्टर्स
are doing good. Okay. तो इस पे फंडामेंटल बेसिस पे हम लोग को स्टॉक मिल जाएंगे और वो टेक्निकल पे हेल्प करेगा. Okay, so thank you everyone. Now Rajesh will take the next steps. Okay. हेलो राजू सर. जी 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 पवन भैया, क्लियर है मेरा वॉइस? हाँ, आपकी आवाज आ रही है. चलिए, थैंक यू पवन भैया. ओके सर. गुड इवनिंग एवरीवन. अगर आप लोग में से कोई एक दो मेरे को बता दे मेरे वॉइस क्लियर है, बहुत बेटर हो जाएगा. थैंक यू विक्रम जी. थैंक यू सो मच वरुण जी. थैंक यू मोहम्मद भाई. थैंक यू. सो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना कि माई सेल्फ राजू गिरी एंड आई एम टेक्निकल एनालिस्ट एंड मैं स्टॉक में टेक्निकल एनालिस्ट हूँ. जो लोग क्लब से हैं वो ऑफ कोर्स मेरे को पहचानते होंगे, जिन्होंने इससे पहले भी वेबिनार किए होंगे उनको पता होगा मेरे बारे में, और जो नए हैं उनका वेलकम है. ट्राई करूंगा कि जो भी अपने एक्सपीरियंस से, जो भी अपने नॉलेज से जितना भी थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं वहां पर शेयर करूं और आप लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊं और चीजों को कितनी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ. सो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो पुराने हैं और जो आज पहली बार सेशन कर रहे हैं, ये द सेशन इज रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी जो हमारा एक इनबिल्ट फीचर्स है इन स्टॉकेज ऐप विच हेल्प द ट्रेडर्स और इन्वेस्टर फॉर टेकिंग द राइट डिसीजन. आप कैसे उस चीज का यूज कर सकते हो. तो द ओवरऑल जो हमारा जो आज का वेबिनार है उसी पे बेस है कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से, यानी द परसेंटेज ऑफ आपका प्रॉफिट का परसेंटेज, द नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड को कैसे हम लोग बाय यूजिंग द स्ट्रैटेजी कैन इम्प्रूव और उससे भी बेटर कर सकते हैं कि नहीं, और वेयर इज द कहाँ पर हमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है. तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करते हैं. तो आज चलते हैं हम लोग स्ट्रैटेजीज पे. तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज इनबिल्ट स्ट्रैटेजी ऑफ द इनबिल्ट एक टूल है स्टॉकेज का. एंड मैं हर वेबिनार में बोलता, आज भी बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी इज नॉट ए रिकमेंडेशन. इट इज नॉट, इसका किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन जो आते हैं कॉल्स का उस पे नहीं है. दिस इज ओनली ए टूल जिसका आप यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से फॉर कि आप कैसे उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं. एक रेडीमेड डिसीजन नहीं है. तो इस चीज को बहुत क्लियरली जो लोग नए हैं वो समझ जाए, या जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे जो भी स्टॉक्स आते हैं वो रिकमेंडेशन नहीं है. वो एक फिल्टरिंग करके आपको जस्ट एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक दिए जाते हैं जो आपको नेक्स्ट डे ट्रेड लेने के लिए हेल्पफुल. तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी जो है हमारा इनबिल्ड का, वो किसी भी तरीके से किसी भी तरीका का रिकमेंडेशन नहीं है. सो आज हम लोग चलते हैं अब इस पे, क्योंकि टाइम बर्डन पे तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पे, और मैं 8 से 10 चार्ट ट्राई करूंगा कि स्ट्रैटेजी से रिलेटेड 10 चार्टों पे हम लोग डिस्कस कर पाए, क्योंकि टाइम भी लिमिट है. तो उसी पे हम लोग चलते हैं. तो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. तो पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट ट्रेडर्स, इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर्स कैसे उसको यूज कर सकते हैं उस पर करेंगे. तो आज हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे पूरे सेमिनार को. फर्स्ट पार्ट जिसका फोकस जो रहेगा वो पूरा का पूरा ऑन द कॉन्सेप्ट, एंड द सेकेंड पार्ट और द लास्ट पार्ट जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि स्टॉक्स पे हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लाके कैसे अच्छा ट्रेड ले सकते हैं. ओके फाइन. सो देयर इज अ थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेटजी. जैसे हम लोग जानते हैं देयर इज अ थ्री टाइप ऑफ मार्केट. एक जो होता है बुल मार्केट, एक होता है बेयर मार्केट, एक होता है साइडवाइज. ठीक है. तो नॉर्मली जो मोमेंटम है वो दो जगह ही होता है, आइदर बुलिश साइड और आइदर बेरिश साइड.
ठीक है। तो इसलिए हर एक स्ट्रैटेजी जो है डिपेंड ऑन द टाइमिंग। यहाँ पर जो 3 टाइप के स्ट्रैटेजीज है, ये तीनों का जो डिफरेंशिएट जो आप अगर करना हो इन अ सिंगल वर्ड इज द टाइमिंग। वन डे जो स्ट्रैटेजीज है, बुलिश हो या बेरिश हो, वो एक दिन के लिए है, यानी 9:15 टू 3:20। स्विंग स्ट्रैटेजीज अगेन इसका टाइमिंग अलग होता है, और टाइमिंग अलग होगा इंट्राडे से। सॉरी, ये 2 से 30 दिन के लिए होता है। एंड थर्ड इज द बुलिश स्ट्रैटेजीज। बुलिश बुल हो या बेरिश हो, वो आपका 30 डेज टू 90 डेज का है। अब वन डे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं हम लोग। वन डे स्ट्रैटेजीज, देयर इज 3 डिफरेंट काइंड ऑफ वन डे स्ट्रैटेजीज। 3 डिफरेंट टाइप के वन डे बुल स्ट्रैटेजीज है, 3 डिफरेंट है। द फर्स्ट वन इज द कैनन, सेकंड वन इज द स्वॉर्ड, एंड थर्ड वन इज द डैगर। कैनन, कैनन हम लोग नाम सुन के सर सर पे क्या था कि एकदम अचानक से जिसमें बहुत तेजी से मोमेंटम आए। सो इसमें ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करके आते हैं जिनका मोमेंटम इज वेरी क्विक। बहुत जल्दी से अपना प्राइस सडनली 10%, 5%, अपना जो उनका एवरेज परसेंटेज है डेली का, उससे ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो कैनन में कैसा होता है, बहुत तेजी से तोप निकल गोला निकलता है ना, सेम सेम उसी टाइप का। कैनन मीन्स द मोमेंटम इज वेरी हाई, मीन्स उसमें प्राइस एक्शन जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इस पे चलते हैं, इस पे देखते हैं कि कौन कौन से स्कैन्स है, क्योंकि मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट फुल्ली फोकस ऑन द स्ट्रैटेजीज पे कॉन्सेप्ट होगा, तो उसी पे चलते हैं। स्कैन स्पेस में कौन कौन से है? द फर्स्ट वन इज द हाई ट्रेड एंड हाई क्वांटिटी डिलीवरी क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज हम लोग चाहते हैं, स्टॉकेज का है कि इंट्राडे पे आप लोग उसी स्टॉक्स पे काम करें जो हाईली लिक्विडेड है। हाईली लिक्विड है, व्हाई? बिकॉज कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी प्राइस में एग्जिट कर सकते हो। लिक्विड इन लिक्विड में फर्क बस इतना होता है कि आपका जो एंट्री और एग्जिट का प्राइस है उसमें ज्यादा ये ना हो कि सपोज कि आपको जब एंट्री लेना आप उस प्राइस पे ले सकते हैं, एग्जिट पे आप ले सकते हो, उसको लिक्विड बोलते हैं। इसलिए जो पहला पार्ट है या पहला स्कैन जो है, दैट इज हाई ट्रेड एंड हाई डिलीवरी क्वांटिटी। तो सेकंड वन इज, क्योंकि मैंने पहले कहा था मोमेंटम शुड बी द मेन फीचर जो है वो मोमेंटम है, तो मोमेंटम शुड बी हाई। सो दैट्स व्हाई क्लोजेस अबव द प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई मींस तो प्रीवियस उसका हाई है, उसके ऊपर उसने बंद कर दिया हो। ठीक है। थर्ड, क्लोजेस ऑफ द लास्ट वीक हाई, मतलब उसका मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि अपने लास्ट प्रीवियस जो वीक का हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फोर्थ वन इज द आरएसआई क्रॉस एबव 70। वाई 70? जैसे कि जो लोग आरएसआई से फैमिलियर है उनको पता होगा कि आरएसआई जब 70 में जाता है, यानी एंट्रिंग इन द ओवरबॉट जोन, एंट्रिंग करता है 70 के पास, जब हम लोग बोलते हैं एंट्री करता है, तो उस टाइम किसी भी स्टॉक्स का, जब कोई स्टॉक्स का आरएसआई 70 में एंटर कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाउनफॉल के तरफ नहीं या प्रॉफिट बुकिंग के टाइम नहीं या सेल ऑफ के टाइम नहीं, जब वो एंट्री कर रहा हूँ, मीन आरएसआई 68, 69 और 70 के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग आरएसआई हो और वो 70 के तरफ एंट्री करता है, तो उस टाइम उसको कहा जाता है दिस इज द हाईली मोमेंटम स्टॉक। ये सबसे ज्यादा हाईली मोमेंटम है उस स्टॉक में, जब कोई स्टॉक अपने आरएसआई 60, 65 ऐसे करते हुए 70 के तरफ एंटर करे, ना कि 80 से 70 के तरफ एंटर करे। तो ये क्लियर रहिएगा। तो इसमें आरएसआई क्रॉस अबव 70 मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड हो, उसके लिए। एंड द लास्ट वन, द आरएसआई ओवरबॉट जोन। मैक्सिमम देखा जाता है कि दो द स्टॉक जो पहले से ही आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, उनमें इन वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए मोमेंटम बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, बहुत तेजी से मोमेंटम आता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है फॉर द इंट्राडे। जो सिर्फ स्पेसिफिक इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए कैनन एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है, विद अ मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, विद अ मिनिमम आरआर रेशियो। तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। इंट्राडे स्ट्रेटेजी में मैंने पहले ही क्लियर किया था, टाइमिंग इज अ मेन फैक्टर। 9:50 से लेके आपका 3:20 तक का ही टाइम होता है। इस पे आरआर देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरआर इज 1:1.5। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो लोग ट्रेड इसको नहीं समझ पाए उसको समझा दो। इफ योर स्टॉप लॉस इज 1 रुपीज, देन योर टारगेट इज 1.5। अगर आपका स्टॉक जिसको आप 100 पे बाई करते हो एंड द स्टॉप लॉस इज 99, देन योर टारगेट विल बी 101.5। ठीक है, इसको 1:1.5 का आरआर कहते हैं। ठीक है, स्टॉक्स पे जैसे मैंने कहा था सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं। इसमें 2 पार्ट आते हैं, हर स्ट्रेटेजी पे एक परफेक्ट मैच होता है, एंड द सेकंड वन इज द
ऑलमोस्ट देयर पे क्या ट्रेड नहीं लेना है। अगर परफेक्ट मैच में नहीं मिले फिर भी आपको बहुत इच्छा है कि नहीं मुझे ट्रेड करना है, देन आप ऑलमोस्ट देयर पे जा सकते हैं। बट परफेक्ट मैच इज गुड। ऑलमोस्ट देयर परफेक्ट मैच में डिफरेंट क्या है हर एक स्ट्रेटेजीज के लिए। परफेक्ट मैच वो उसमें ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करके आते हैं जो हमारे सारे स्ट्रेटेजीज को मीटअप करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट देयर पे जो 70-80% मीटअप करते हैं, जो 70-80% उस कैटेगरी को फुलफिल करते हैं, वो ऑलमोस्ट देयर पे आते हैं। और परफेक्ट मैच पे वो स्टॉक्स आते हैं जो 100% हमारे स्कैन्स को मैच करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह स्वॉट है। डैगर स्वॉट कंटिन्यूशन, एक तरह का कंटिन्यूशन पैटर्न होता है या कंटिन्यूशन फेज होता है किसी भी स्टॉक का, जिसमें एक स्टॉक अच्छे खासे अप में रहता है, एक रैली पे रहता है, जो अपवर्ड ट्रेंड पे रहता है। ठीक है, उसके बाद एक साइड में कंसोलिडेशन फेज आता है एंड देयर आफ्टर अगेन वो अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, तो स्वॉट कंटिन्यूशन का जो पहला स्ट्रेटेजी का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वॉट या कंटिन्यूशन स्ट्रेटेजी इन वन डे, कि पहला कंडीशन है कि स्टॉक शुड बी ना अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसका ट्रेंड जो होता है प्राइमरी ट्रेंड अप होना चाहिए। द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर्स कि वो एक अप ट्रेंड में होने के बावजूद एक साइडवाइज फेज में, एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा हो। एंड थर्ड, वो अपने फिर से ब्रेकआउट देके उस प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करे। इसको हम लोग स्वॉट बोलते हैं। इसमें स्कैन्स पे देख लेते हैं हम लोग। हाई ट्रेड क्वांटिटी, लिक्विड होना चाहिए, हाई इंक्रीज इन 3 मंथ, जैसे मैंने कहा कि 3 महीने में स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, अपसाइड हो। सीसीआई स्टैंडिंग अप, एमएफआई स्टैंडिंग अप, दोनों आरएसआई का ऑल्टरनेटिव है। बहुत सारे ट्रेडर जो है आरएसआई के कंपेयर में सीसीआई यूज करना पसंद करते हैं एंड एमएफआई भी करते हैं। आरएसआई, सीसीआई और एमएफआई ये तीनों के तीनों लीडिंग इंडिकेटर है, अर्ली सिग्नल देते हैं, किसी भी चीज का अर्ली सिग्नल देते हैं। ठीक है सर, एक तो कमोडिटी इंडेक्स है और एक आपका मनी फंड इंडेक्स है। इंडिकेटर्स पे आप लोग स्टॉकेज के लर्निंग वाले साइट पे जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो इंडिकेटर्स के अंदर नहीं जा रहा हूं मैं, जस्ट उसका आउटकम क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ, और किस टाइप के स्ट्रेटेजीज होते हैं, क्योंकि अगर अंदर जाएंगे तो एक ही इंडिकेटर को पढ़ाने जाएंगे तो सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटरवल पार्ट पे एक बार देख लेते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। इसका भी सेम है 1:1.5 सारी इंटरडेट स्ट्रेटेजीज का। एंड द थर्ड वन इज द डैगर। डैगर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, बट ये बुल मार्केट में काम नहीं करता। ठीक है, प्लीज इसको आप अच्छे से समझिए। डैगर और रिवर्सल वन डे स्ट्रैटेजी बुल मार्केट में काम नहीं करता। अगर ये भी आपको समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मिस हो जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विच स्ट्रैटेजी इज गुड फॉर यू। ठीक है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड द फर्स्ट ट्रेंड। ट्रेंड आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। इन अप ट्रेंड आपको कौन सा स्टॉक बहुत अच्छा काम करके दे सकता है, कौन सा स्कैन अच्छा करके दे सकता है, कैनन अच्छा करके दे सकता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी अच्छा करके दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ठीक है, सेम मार्केट जब बेरिश ट्रेंड होगा तो आपको बेरिश स्ट्रैटेजीज अच्छा करके देंगे। तो ऑलवेज गो विद द मार्केट, हमेशा आपको मार्केट के साथ चलना है। ठीक है, इफ द मार्केट इज इन अ बुल रन तो आपको बुल स्ट्रेटेजीज पे फोकस करना है, और अगर बेरिश में तो बेरिश स्ट्रेटेजीज पे फोकस करना है। ठीक है, डैगर एक रिवर्सल पैटर्न है वन डे पे, क्योंकि एक रिवर्सल है तो इसका हाई डिक्रीज इन 1 मंथ, 1 महीने में बहुत अच्छा खासा प्राइस करेक्शन आ गया होगा। बट द विलियम परसेंटेज आर इज बुलिश, और मैकडी जो एक लेगिंग इंडिकेटर है, क्रॉस सिग्नल लाइन फ्रॉम द बिलो, नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा रिवर्सल देता है। इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि मार्केट इज इन अ बुल रन, बहुत अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो इसलिए टैगर में एक भी स्टॉक नहीं है। ठीक है, वन डे बेरी स्ट्रेटेजीज पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट बुल है, तो मैं चाहूंगा कि जो अभी मार्केट का करंट सिनेरियो है उसी पे फोकस करें, उसी स्ट्रेटेजी से फोकस करें, उसी से रिलेटेड चीजों पर फोकस करें। एक छोटा सा बस समझा देता हूँ कि वन डे बेरी स्ट्रेटेजीज क्या है। सेम कॉन्सेप्ट है, 9:15 से लेकर 3:20 तक का आपका ट्रेड बनता है। इस पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 है। ठीक है, इसमें भी 3 टाइप की स्ट्रेटेजीज है, यानी वन डे बेरी स्ट्रेटेजीज को अगर 3 पार्ट में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज द मोमेंटम, ऐसे स्टॉक जिसमें सडनली प्राइस करेक्शन हो रहा है और बिगर प्राइस करेक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्राइस गिर रहा है, यानी 0.05 या 1% नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइस करेक्शन है।
स्टॉक कंटिन्यू 1 महीने 2 महीने से नीचे ही जा रहा है, ठीक है। या और इसमें एक अच्छा मिल सकता है वन डे बेरिश स्ट्रेटेजी जो अभी काम कर सकता है। सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो आपने 2-3 महीने 6 महीने से पकड़ के रखा है, तो उसका बुल रन खत्म कब होगा, उसका बुल रन का एंड कब हो सकता है, इसको हम लोग पता कर सकते हैं बुमरेज और रिवर्सल वन डे बेरिश स्ट्रेटेजी से, अगर इफ यू आर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ठीक है। इससे हम लोग पता कर सकते हैं। सेम ऐसा स्विंग में भी है, उससे भी पता कर जा सकता है। बट सपोज की जो 2-3 एक स्टॉक है जो 2-3 दिन से बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके उस मोमेंटम का एंड कब होगा, जब वो इस बुमरेज रिवर्सल वाले में आ जाएगा, तो आप समझो कि यार इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है, इससे एग्जिट कर जाना चाहिए। एक बार स्टॉक्स तो कुछ है नहीं, क्योंकि मार्केट मैंने पहले ही कहा बेरिश स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन करके टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि अभी मार्केट बुल है, अच्छा खासा बुल है, तो उसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी में मिलेगा। फिर भी हम लोग इस पर बात कर लेते हैं स्कैन्स पे। तो वन डे स्ट्रैटेजी जितने भी, उसका पहला जो हम लोग का कंडीशन होता है, हाई ट्रेड एंड हाई डिलीवरी क्वांटिटी, मतलब लिक्विडेट होना चाहिए। क्लोजेस्ट बिलो प्रीवियस वीक, प्रीवियस लो के नीचे होना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। क्लोजेस्ट बिलो लास्ट वीक के नीचे बंद होना चाहिए। आरएसआई क्रॉस बिलो 30 यानी ओवरसोल्ड जोन में एंटर करना है। जो लोग आरएसआई से फैमिली, उनको पता है एक ओवरसोल्ड जोन होता है, आरएसआई 30 के नीचे चला जाता है। राजेश जी, ये मैं लिख लेता हूँ व्हाट टाइम वी सीट स्ट्रैटेजी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकंड ये पहले कर लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज आरएसआई ओवरसोल्ड जोन। बहुत ऐसे स्टॉक होते हैं ना, देखिए वो ओवरसोल्ड में एंटर किए हैं, और अगर वो 2-3 दिन अगर वहां पर रुक जाते हैं ना, दे स्पैन 2 और 3 डेज ट्रेडिंग सेशन वहां पर स्पैन कर देते हैं ना, या तो उसके बाद उसमें और करेक्शन आता है। तो ये इसको भी बताता है कि एक मोमेंटम बहुत वीक है। बहुत स्टॉक होता है जो कंटिन्यू 3-4 महीने से गिर रहे हैं, तो उनमें आरएसआई जो ओवरसोल्ड में जाने के बाद भी और भी ज्यादा सेलिंग आती रहती है। सेकंड इज सेल्ड कंटिन्यूशन, मतलब कि एक स्टॉक जो एक डाउन ट्रेंड में था, एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन में, उसका एक साइडवाइज फेज में गया, और फिर से उसने अपने प्राइमरी ट्रेंड को या प्राइमरी मोमेंटम को फॉलो किया, और फिर से करेक्शन की तरफ जा रहा है। हाई ट्रेड क्वांटिटी, हाई डिक्रीज इन 3 मंथ, सीसीआई स्टैंडिंग डाउन एंड एमएफआई स्टैंडिंग डाउन। द लास्ट वन इज द रिवर्सल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका अप ट्रेंड में बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बुमरेंज पे डिस्कस कर सकते हैं ये। इसमें देखिए शायद स्टॉक, हाँ स्टॉक आए भी है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, रिवर्सल वन डे बेरिश रिवर्सल वाली स्ट्रेटेजी में यू कैन फाइंड, नॉट 100% नहीं हो सकता, यू कैन फाइंड कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाए जिनका बुल रन अप एंड के तरफ है, ठीक है। प्लीज मैं जो बोला फिर से समझिएगा। मेरे बोलने का मतलब था कि बुमरेंज रिवर्सल वन डे बेरिश स्ट्रेटेजीज में आपको ऐसे स्टॉक्स मिल सकते हैं जिनका बुल रन अपने एंड के तरफ है। मीन्स वो आपको ये तो नहीं बताएंगे, उस पर ये तो मैं श्योर नहीं बोल सकता कि आपको सेल करना चाहिए कि नहीं, बट इफ यू हैव द स्टॉक, आपको स्टॉप लॉस लगा लेनी चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इफ यू हैव द स्टॉक, तो आपको वहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए कि शायद यहाँ पर प्राइस करेक्शन आ सकता है, इफ यू शॉर्ट टर्म ट्रेडर। और उसमें अगर इफ यू इंटरडे ट्रेडर, तब तो आप बहुत अच्छे से एक वो सडनली प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, वो यहाँ पर मिल सकता है आपको। इसमें परफेक्ट मैंने डॉक्टर लाल पैथला पे स्कैन्स पे बात कर लेते, क्या स्कैन्स ऐसे हैं। हाई डिलीवरी क्वांटिटी, हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, 1 मंथ में स्टॉक अपने हाई के पास ही है। विलियम परसेंटेज आर इज बेरिश, एंड मैकडी क्रॉसिंग सिंगल लाइन फ्रॉम एबव, यानी मैकडी का जो सिंगल लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ टिल करना चाहिए, तो इसमें एक इंडिकेशन है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर प्राइस करेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्विंग पोजिशनल पे। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर क्योंकि उसका लेंदी है, तो पोजिशनल पे नहीं। मैक्सिमम मैं क्लब में देख रहा हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चन वन डे और स्विंग को लेके आते हैं, तो ज्यादा इस पे स्पेंड करते हैं। पोजिशनल में एक मेरा बहुत फेवरेट स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, होपफुली आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब आते हैं स्विंग बुलिश स्ट्रेटेजी, स्विंग बेरिश स्ट्रेटेजीज पे, उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे, और अगर उसके बाद टाइम बचा तो हम लोग एक बुलिश स्ट्रेटेजी जो मेरा बहुत फेवरेट है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ऑफकोर्स लास्ट का 5 मिनट मैं देता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, जिनका कोई भी डाउट हो, ठीक है। स्विंग स्ट्रेटेजीज क्या है? द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्विंग स्ट्रेटेजी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन डे स्ट्रेटेजी। तो जो पहला थिंग होता है, द टाइमिंग और ड्यूरेशन। इन वन डे स्ट्रेटेजी आपके पास एक टाइम लिमिट है, 9:15 to 3:20, ठीक है। बट इन स्विंग स्ट्रेटेजी जो आपका पहला ही एडवांटेज है, इन वन डे स्ट्रेटेजी व्हाट इज द फर्स्ट बिगेस्ट डिसएडवांटेज, कि आपका टाइम लिमिट है।
आपका स्टॉक अच्छा है, सब कुछ है, बट अगर वो टाइम पे ऊपर नहीं गया तो आपको एग्जिट करना होगा। वो डिसएडवांटेज है टाइमिंग। दूसरे स्विंग स्ट्रेटेजी में व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि आपके पास टाइम होता है। आप 2 दिन से लेके 30 डेज तक का टाइम फ्रेम ले सकते हो स्विंग स्ट्रेटेजीज अगर आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, स्विंग स्ट्रेटेजीज में और उसका सेकंड एडवांटेज क्या होता है तो देख लेते हैं। अच्छा, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड पढ़ लेते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है 1:3 है। 1:3 है। स्टॉक्स पे भी बात करेंगे और स्कैन्स पे करेंगे, तो पहले स्कैन्स पे चलते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो इसके बाद लास्ट में उसमें चलेंगे। सर ये यल्डा जी शायद है, ये पूछ रहे टुडे वन डे बुल स्ट्रेटजी परफॉर्म नेगेटिव। नो सर, टोटली रॉन्ग, ये नेगेटिव परफॉर्म नहीं किया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑन व्हाट बेसिस आपको वन डे जो स्ट्रेटजीज पे जो कॉल्स आते हैं उस पर ट्रेड करना है। तो प्लीज बी विथ मी टू द एंड ऑफ द सेशन, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नेगेटिव नहीं है। आपने वो चीज को समझाने के लिए वेबिनार है। तो वेबिनार इज ओनली फॉर दिस कि आप वो चीज समझ पाओ कि उसमें कोई स्टॉक्स आ जाएंगे ना, तो ये जरूरी नहीं कि वो अगले दिन चलेंगे। सो इसी वजह से स्ट्रैटेजी है जो ये, सॉरी, ये सेशन है जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें आप कैसे कर सकते हैं। तो ईगल पे पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं उस पर जाऊंगा सर। ना ना, तो इसमें था स्कैन्स पे आते हैं। तो फर्स्ट वन, क्लोजेस्ट विद इन 52 वीक हाई। हाईली मोमेंटम में ईगल है। ईगल आप लोग सब लोग जानते हैं, आप लोग देखते हैं ईगल सबसे ऊपर उठता है, मतलब कि वो जमीन से बहुत ऊपर रहता है। तो एज सेम, तो अगर देखें तो ईगल स्ट्रेटेजी है तो वो अपने हाई के आसपास होगा। तो पहला कंडीशन ये है, क्लोजेस्ट विद इन 52 वीक हाई। सेकेंड, स्टॉक, ऑफ कोर्स सर अगर टाइम रहेगा मैं कॉम्बिनेशन स्कैन्स पे भी चर्चा कर लूंगा। तो टाइम अगर रहा तो मैं बिल्कुल करूंगा। द सेकेंड इज द स्टॉक आउट परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स इन बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ। सो देयर इज अ क्वेश्चन कम आपके मन में आना चाहिए था कि वाई 1 वीक एंड 3 मंथ, क्यों नहीं 2 वीक 4 मंथ लिया सर लोगों ने, या क्यों नहीं स्कैन्स पे 1 दिन और 15 दिन लिया। एक स्टॉक का अगर 1 वीक का ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो उससे आउटकम ये आता है कि स्टॉक इन ए शॉर्ट रन इज पॉजिटिव, उसका मोमेंटम हाई है। और अगर कोई स्टॉक अपने 3 मंथ के टाइम फ्रेम में अच्छा करता है तो उसका मिड टर्म ट्रेंड भी बहुत अच्छा है। कविता जी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप टेंशन ना लो आप लोगों को, इसीलिए मैंने बोला कि लास्ट का पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि प्रैक्टिकली कैसे स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आप ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ मैम, कि आपको बताने के लिए कि सिर्फ स्ट्रेटेजीज पे आ जाने से आपको नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसलिए पहले कहा ना कि स्ट्रेटेजी नॉट ए रिकमेंडेशन, ये जस्ट इज अ टूल जो आपको एक फिल्टर करके स्टॉक्स देता है। अब बैक टू द स्ट्रेटेजी पाते ईगल पे। थर्ड, स्ट्रांगली आउट परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैक्सिमम जो यहाँ पर ऑडियंस है उनको पता होगा कि व्हाट इज द बेंचमार्क इंडेक्स, बट जो नहीं है उनको मैं बता दूं, इंडेक्स में बहुत सारे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200। तो जो स्टॉक्स इसमें रहते हैं और निफ्टी 50, सपोज कीजिए रिलायंस है, तो रिलायंस तो एक अच्छा, रिलायंस एक स्टॉक है और उसका बेंचमार्क इंडेक्स इज निफ्टी 50। यू कैन नॉट कंपेयर रिलायंस विद ए स्मॉल कैप और मिड कैप, और जो मिड कैप है उसका कंपैरिजन निफ्टी 50 से नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो स्टॉक जिस इंडेक्स में रहता है उसका कंपैरिजन उसी से होता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। जो बिगनर है, ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस होंगे जिनको पता होगा, तो मैंने बिगनर के लिए सब एक्सप्लेन कर दिया कि बेंचमार्क इंडेक्स क्या है। ठीक है, अब उसके बाद आरएस वाले कॉन्सेप्ट में आता है, स्ट्रांगली आउट परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स। आरएस के कॉन्सेप्ट से जो पवन जी ने एक्सप्लेन किया था, स्ट्रांगली आउट परफॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स आरएस के बेस पे। बोथ एसआरएस एंड एआरएस अबव जीरो, ये भी आरएस की एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हमारे ईलन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइम फ्रेम को लेकर आप कर सकते हैं, ये भी आरएस के बेस पे किया हुआ है। हाई रिटर्न इक्विटी, क्योंकि 30 दिन का स्टॉक है तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक होने चाहिए। तो हाई रिटर्न इन इक्विटी, कंसिस्टेंट सेल ग्रोथ रेशियो, कंपनी के पास सेल्स का हमेशा ग्रोथ हो रहा है, एंड कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से कंपनी कैश बना रही है। सेकेंड स्ट्रेटेजी है डफ कंटिन्यूएशन। सेम, इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है जो वन डे वाले का था। स्टॉक इन अपर ट्रेंड होगा, देयर इज अ साइडवाइज फेज, एक साइडवाइज फेज आएगा, एंड अगेन द स्टॉक इज फॉलोइंग द प्राइमरी ट्रेंड। इसमें आपको फ्लैग भी मिल सकता है, इसमें आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी मिल सकता है। थोड़ा मैं चार्ट पैटर्न भी बता दे रहा हूँ आपकी कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजीज में। अगर कुछ आपको 2 जगह मिल जाएगी, हमारा जो एक चार्ट पैटर्न का भी एक टूल है उसमें, सॉरी, और स्विंग बुलिश स्ट्रेटेजी के डॉप स्ट्रेटेजी में भी अगर मिल जाए
कोई स्टॉक हो जो ये दोनों में आ जाए ना, तो 100% कंफर्म रहो तो स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। चलते इस पे, अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं स्कैन्स पे। क्लोजेस है प्रीवियस हाई, मोमेंटम अच्छा खासा होना चाहिए। हाई इंक्रीज इन 6 मंथ, क्योंकि मैंने पहले कहा प्राइमरी ट्रेंड अप होना चाहिए। आरएसआई स्टैंडिंग अप एंड विलियम परसेंटेज आर इज पुलिस। ठीक है, इंट्रो वाले पार्ट में चले जाते हैं, देखते हैं इसका आरआर क्या है। सेम 2 से 30 दिन का स्ट्रेटेजी है। आरआर है 1:2, ₹1 के लिए आप ₹2 तक का प्रॉफिट देख सकते हो। द लास्ट फ्यूनिक्स रिवर्सल, स्टॉक्स नहीं है, इंट्रो वाले सेक्शन पे चलते हैं। इसके पहले रिक्स टू रिवर्स 1:2 है, मतलब एक ही स्ट्रेटेजी 1:3 ले सकते हैं, क्योंकि उसका मोमेंटम हाई है। बाकी दोनों केस में स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया गया है, ना कि मोमेंटम पे। स्ट्रक्चर का मीनिंग में बता दूं, जो न्यू है, स्ट्रक्चर मींस उसपे सब कुछ देखते हैं, नॉट ओनली प्राइस एंड प्राइस एक्शन। उसपे उसमें आपका इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें पैटर्न्स पे भी होता है। उसपे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है ना, उस पर बात करते हैं कि प्राइमरी उसका ट्रेंड क्या है। और जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, मोमेंटम स्ट्रेटेजी, उसमें हम लोग मेनली जो फोकस हो प्राइस एक्शन पे ही है। अब आते हैं वन डे सॉरी स्विंग बेरी स्ट्रेटेजीज की तरफ। उसके बाद हम लोग चलेंगे चार्ट पैटर्न में, सॉरी चार्ट पैटर्न, चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। जो सर लोग का क्वेश्चन है कि चला क्यों नहीं। स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजीज पे 3 स्ट्रेटेजीज है, सेम बेसिक सेम है सबका। फैल्कन मोमेंटम, जिसमें कंटिन्यू करेक्शन आ जा रहा है, कंटिन्यू लोअर लो और लोअर हाइस का फॉर्मेशन कर रहा है। रेवेन कंटिन्यूएशन, जिसमें एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक साइडवाइज फेज आया, और फिर लगा कि नहीं अब तो इसमें कोई रिवर्सल आ सकता है, बट अगेन अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करते अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ चला गया। इसको रेवेन में आते हैं। एंड सीगल, ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये आप लोग भी यूज कर सकते हैं, अगर आप समझ के यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सीगल रिवर्सल है, ऐसे स्टॉक जो बहुत ऊपर जा रहे हैं तो सडनली उसमें प्राइस करेक्शन आने वाला है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, बेरिस रिवर्सल का यूज आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपके पास स्टॉक है और इसमें अगर आ जाए तो आप उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हो, और आपको पता होना कि अब एग्जिट का टाइम आ चुका है। चाहे ट्राई माई लेबल बेस्ट मोहन जी, बट ऑडियंस हिंदी की भी है, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ एज मच एज कैन पॉसिबल, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा। सिकल पे ठीक है, स्कैन्स पे एक बार बात कर लेते, तो उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलते हैं। फिर क्लोजेज ऑफ लास्ट मंथ हाई, यानी अपने हाई के आसपास है, तभी करेक्शन है या रिवर्सल आ सकता है उसमें। बट द सीसीआई इज बेरिस एंड विलियम परसेंटेज आर इज बेरिस, एंड बेरिस इंगनफिल भी बनना चाहिए। मीन्स एक कैंडल स्टिक का एक है बेरी सिंगल फिग, मतलब एक बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन का टॉप होने पे देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में करेक्शन और मे बी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। नाउ बैक, अब हम लोग चलते हैं अपने चार्ट की तरफ, उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद एट द एंड में एक पोजिशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि उस पर जाएंगे तो चार्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, एक पोजिशन स्ट्रेटेजी जो मैं बहुत फेवरेट है, मैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि सर लोगों का कमलेश जी, रिकॉर्डिंग शायद यूट्यूब पे भी मिलता है, और अगर आप इफ आर क्लब मेंबर तब आपको वहां पर भी मिल जाएगा। थैंक यू, आपको अच्छा लगा। सो अब हम लोग चलते हैं। आप पूछ सकते हैं कि वनडे पे शायद 2 लोगों ने कहा था कि वनडे स्ट्रेटेजीज पर सर चले नहीं, तो मैं देख लेता हूँ, मोमेंटम वाले पे चलते हैं। 10 चार्ट पर डिस्कशन करेंगे सर, ठीक है। सो पहले ही चलते सीसीएल, जो आप लोगों ने कहा कि यार बुरी स्ट्रेटेजी पर आए पर नेगेटिव है, मैं मान लेता हूँ। चलते देखते हैं क्यों नेगेटिव है, क्या इसमें मेरा ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है। ट्रेडिंग व्यू, मेरा ट्रेडिंग व्यू सबको दिख रहा है ना? एक या 2 लोग अगर यस कर देंगे तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगा। यस, थैंक यू कविता जी, थैंक यू। सीसीएल पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बुलिश स्ट्रैटेजी पे आया पर नेगेटिव था। नेगेटिव था मतलब नेगेटिव पे बंद हुआ। सो सेशन का जो मेन पर्पस है उसी पे चलते हैं, कि क्या में क्या करना चाहिए। सीसीएल, ये आ गया आपका सीसीएल। करते हैं इसको 15 मिनट पे कर लेते हैं। इंटरनेट ट्रेडर्स 15 मिनट से नीचे के चार्ट पे ना ही देखना बेटा, 5 मिनट्स पे दे सकते हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है। बट अगर आप न्यू है, न्यू इन द सेंस 6 मंथ टू 1 ईयर हुआ है, तो 15 मिनट्स का चार्ट ही देखिए। और अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, तो आप 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। ऐसे मेरा सेटअप है, फिर भी मैं इसको सुपर टेन को हटा देता हूँ। तो ये रहा उसका आज का सीसीएल का।
ये रहा शायद, एक सेकंड, इसका स्ट्रेटेजी वन डे बुलिश पे रॉन्ग शॉट यार। हाँ हाँ हाँ, नहीं मुझे भी लग रहा है रॉन्ग, रॉन्ग ही है। इससे मैं भी सोचा नेगेटिव कैसे हो गया। प्रोडक्ट इंडिया, चलिए ये छोड़ लिया। ये देखिए जैसे कि कल 31 जुलाई था, और कल डे एंड पे, एंड ऑफ द डे इसमें आया था स्ट्रैटेजी पे का। अब इसका हम लोग देखते हैं क्लोजिंग, थोड़ा मैं चार्ट को ये कर देता हूँ। ये कल का आई थिंक कल का क्लोजिंग था यहाँ। अच्छा एक चीज देखिए, तो जो पहला चीज है, स्कैन्स में तो है ठीक है, मोमेंटम हाई है, स्टॉक हायर हाई का फॉर्मेशन करा, बट यस्टरडे स्टॉक ने देखिए क्या किया एट द एंड, एक अच्छा खासा, एक यहां से मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से एक अच्छा खासा अप बन रहा था, बन रहा था, बन रहा था, बन रहा था। सर मैं करूंगा, मैं कविता जी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इस सेशन का पर्पस यही है कि सिर्फ आप लोग स्ट्रैटेजी को देख के आप उस पर ट्रेड ना करें। स्ट्रैटेजी इज जस्ट ए टूल जो आपको ट्रेडिंग के डिसीजन लेने पे हेल्पफुल होता है। तो इज नंबर ऑफ स्टॉक जो है इन बीएससी एनएससी 3000 से भी ज्यादा है। तो क्या एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है 3000 स्टॉक्स को जाके चार्ट पे चेक करना? नहीं। तो एक एक जो एक्सपीरियंस हमारे एनालिस्ट है, उन्होंने एक बिल के स्ट्रेटेजी बनाया था कि अगर ये फॉर्मेशन या ए स्ट्रक्चर होता है तो ऐसे स्टॉक बहुत अच्छा कर सकते हैं नियर फ्यूचर। ठीक है, बट वो रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। अगर वो रिकमेंडेशन होता तो हम लोग उसमें बाइंग प्राइस स्टॉप लॉस सब देते। वो सिर्फ एक स्कैन है जो आपको ये बताता कि इन इन स्टॉक्स में अच्छा खासा अपमूव है, मोमेंटम क्या है, बस। चलिए इस पे आते हैं, बैक टू द अपने चार्ट पे आते हैं। ये अपना कल 2:15 में इसने कल का डे हाई मारा था, परसों का, सॉरी कल का प्रीवियस डे का डे हाई मारा था। उसके बाद क्या हुआ? इफ यूर इंटरडे ट्रेडर और आप स्टॉकेज के मेंबर हो, तो आपके अंदर तो ये चीज आ जानी चाहिए कि मुझे थोड़ा अलग सोचना है जो लोग सोचते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, अगर ऐसा देखता कि मैंने एंड ऑफ द डे कल मेरे को ईओडी पे सीसीएल आता, मैं उसका चार्ट खोलता, मैं देखता कि इसने 2:15 पे डे हाई बनाया। उसके बाद क्या, उसके बाद इसमें सडनली एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन आया। तो अगर मैं देख रहा हूँ और मुझे ये पता है कि मैं स्टॉक एक्स में यूज करता हूँ, मैंने उसका वेबिनार देखा है, तो मेरे को याद है कि नहीं, उन्होंने तो बताया था कि अगर कोई स्टॉक डे हाई बनाने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन दे दे, तो नेक्स्ट डे उसको मोमेंटम तब तक नहीं आएगा जब तक आप वो अपने स्टडे हाई के ऊपर चल ना जाए। क्लियर सबको? मीन्स कि अगर देयर इज अ करेक्शन एट द एंड ऑफ द डे पे, अगर स्टडे पे एक करेक्शन आ जाता है किसी भी स्टॉक में अचानक से मूवमेंट के बाद, तो उसमें 99.99% मैं श्योर हूं कि तब तक नेक्स्ट डे अच्छा मूव नहीं आ सकता जब तक वो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस ना करे। इस वाले केस में किया ही नहीं, तो इसमें तो ट्रेड बना ही नहीं। तो फिर इसका नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब ही नहीं था। फर्स्ट कंडीशन, अगर आप देख के बाई करते हो तो आपको चार्ट में देखना है, जिसके लिए वेबिनार और जिसके लिए ऐसे वेबिनार होते हैं, कि आपको समझना है कि अगर स्टॉक 2:15 पे डे हाई पे था, उसके बाद उसमें एक 1.5 घंटे में, लास्ट के 1.5 घंटे में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। तो दिस इज एक नॉर्मल सा एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि अगर करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो तब तक नया हाई नहीं बनेगा जब तक अपने उस हाई को 2:15 का हाई को क्रॉस ना करे। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट से सीसीएल में क्यों नहीं ट्रेड बन रहा? क्योंकि अगर ये एक आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, एक रूल भी है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, कि अगर स्टॉक एक अच्छा खासा हाई पे है, और इसको अगर मैं डेली चार्ट करूँ ना, आपको क्लियर समझ में आया। देखिए, ये देखिए, जिनको भी थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस है उनको पता है, ये स्टॉक ने एक बहुत अच्छा बड़ा कैंडल बनाया था। आप जाइए, 99.99% में श्योर हूं, जितने भी स्टॉक्स के चार्ट आप देख सकते हो, जितने भी आज तक है, एक ऐसा बड़ा बुलिश कैंडल बनने के बाद अगर स्टॉक अपने हाई से नीचे की तरफ बंद हो, ये तो अच्छा खासा एक लास्ट में एंड में प्रॉफिट बुकिंग है, नीचे की तरफ फिर भी बहुत बड़ा कैंडल है, ग्रीन ब्लू कैंडल में नहीं बोला, मोमेंटम बहुत वीक है, फिर भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जब तक ये स्टॉक इस हाई के ऊपर नहीं निकलेगा, किसी भी आप जाके प्रीवियस चार्ट को देख लीजिए, उसने नया हाई नहीं बनाया होगा। तो जो पहला कंडीशन, अगर ऐसा कोई बुलिश कैंडल बन जाए, तो सब इंट्राडे ट्रेडर हो और आप स्टॉकेज के मेंबर हो, तो पहले ही समझ लो ट्रेड नहीं लेना।
वरना एक नॉर्मल पब्लिक में और आप में क्या फर्क होगा? तो फर्क ये है कि इफ यू सी कि नहीं मेरे को एक बड़ा सा ब्लू कैंडल, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिख गया है, और मैं स्टॉक एक्सचेंज में तो बताया गया था वहां पर एनालिस्ट के थ्रू कि नेक्स्ट डे तभी ट्रेड लेना जब उस कैंडल के ऊपर चले, ठीक है? इफ यूर वन डे ट्रेडर, अगर आप इफ यूर इंटरडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर हो तभी भी इसमें बाइंग है, इफ यूर पोजिशन ट्रेडर तब भी अभी इसमें स्टॉक अच्छा है, बट इफ यूर वन डे ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर तो सर इसमें ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है? अगर ये कैंडल छोटा होता तो मैं बोलता आपका बनता, बट अगर कोई बड़ा कैंडल है इसीलिए इस वेबिनार है, ठीक है? एक्सप्लेन हो गया एक का। एक और इंटरडे एक्सप्लेन करूंगा, कौन सा आप लोग चूज कीजिए, कोई एक सर हमको बता सकता है या मैं चूज कर लूं? थैंक यू सर, थैंक यू कविता जी, आपको समझ में आया, मैंने कहा था मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये चीज, ये मैं क्लियर कर दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि अगर कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाए ना तो नेक्स्ट डे तभी आपको ट्रेड लेना है जब वो अपने उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाए, ये पहला रूल होता है, ठीक है? सेकंड में चलते हैं। हाँ, क्लीन साइंसेस है, दिलीप जी का है क्लीन साइंसेस, इसमें भी है, मैं भी देखता हूँ उसमें क्लीन साइंस। मैंने कहा अगर वो कैंडल छोटा होता ना तब तो पक्का ट्रेड बनता, पर वो कैंडल बड़ा है। थैंक यू सैकल जी, आपको अच्छा लगा, आप एंड पे रहिए, आप लोगों को सबको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं रहूंगा 5 मिनट आप लोग के साथ में रहूंगा जिसमें मैं डाउट क्लियर करूंगा। क्लीन साइंसेस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आपको डेली चार्ट पे देख लिया करो, आप जितना भी इंट्राडे स्टडी करो सर, रात के वक्त आप एक बार इंट्राडे में करते हो, डेली में देख लीजिए। अब देखिए इस वाले ट्रेड में क्या हुआ, परफेक्ट छोटा कैंडल है, मेरा एंट्री बन रहा है, मैंने कहीं नहीं डिनाई किया एंट्री नहीं बन रहा, एंट्री बन रहा है, ठीक है? तो ये रहा उसका कल का क्लोजिंग। अब इसमें आ जाता है, ये इसके ऊपर गया, ये वाला पोजीशन था मेरा जहां पर उसमें इंट्राडे में ट्रेड बना, ये यहां पर उसने अपने प्रीवियस हाई को क्लोज किया, ठीक है? एंट्री बना, सो यहां पर एक ट्रेड बना, यहाँ पर बना, ये कंफर्म करता है कि एंट्री बनता है इफ यू टेक द एंट्री, बट इन द वेरी नेक्स्ट कैंडल, इन द वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर वो ऐसे रेड कर देता है तो जैसे वो रेड हो और आपके ब्राइट प्राइस के कैंडल के नीचे चला जाए, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी स्टॉक का पहले आधे घंटे का चार्ट इज बुलिश, कंफर्मेशन दे रहा है कि यस यू कैन बाय, और आप बाय कर लेते हो, और द वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड हो जाए और उस कैंडल के हाई के नीचे बंद हो, सो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, एंड जैसे ही वो स्टॉप लॉस को हिट करे एग्जिट। तो अगर मैं इस ट्रेड पे लेता, इस कैंडल का लो मेरा ये है 1634, ये मेरा एसएल होता, जैसे ही एसएल को हिट करता मैं एग्जिट कर जाता, ठीक है सर? अब चलते हैं हम लोग स्विंग स्ट्रेटेजीज पे, नहीं एक एक कंटिन्यूशन पे भी कर लेते हैं। So I'm trying my level best to explain in both the language, but as I know कि मैं यहाँ पर ज्यादा परसेंटेज ऑफ जो है वो हिंदी है, बट ठीक है मैं ट्राई करता हूँ एज मच आई कैन, मैं ट्राई करता हूँ। चलते अब शॉर्ट पे, एक शॉर्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट पे देखते परफेक्ट प्राइस में दे रहा है तो ठीक है, ये भी है। आज नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग भी था, एक कंडीशन मैं बताऊंगा, आप लोग से एक्सप्लेन करूंगा जो मैं एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। डिक्सन, उसको पहले डेली पे देख लेंगे। हाँ, ये तो कंटिन्यूशन पे आया था, देखिए ये 3 कैंडल थे और कल का कैंडल ही रेट था, कैप अप हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक क्लोजेस नियरेस्ट डे लो, अच्छे से समझिए, स्टॉक गिवन ए बैक गैप अप हुआ, बट द एंड ऑफ द डे उसने पूरे गेन को लूज करके लो के आसपास बंद कर दिया। तो सर मिनिमम से मिनिमम अगर भी अगर आपको एक्सपीरियंस है, दिस इज द वेरी क्लियर आइडेंटिफिकेशन, सॉरी इंडिकेशन कि स्टॉक का जो मोमेंटम है वो लूज कर गया है, तो ये तो ट्रेड बन ही नहीं रहा, ठीक है? तो कभी भी देखो कोई भी स्टॉक अगर गैप अप ओपन होता है and filled the gap up within the day or closes nearby the day low,
उसमें 1 डे बुल स्ट्रेटेजी नेक्स्ट डे का बन ही नहीं रहा, अनलेस और अनटिल वो अपने डे के ऊपर निकलना जाए। ठीक है, तो ये सब भी कंडीशन आपको देखना होगा, ये सब भी कंडीशन आपको समझनी होगी। और 2 स्विंग पे चलते हैं, टाइम बढ़ाने फिर क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, 1 डे आशीष, ये पॉलीकैप आप तो शायद क्लब मेंबर भी हो, तो क्लब में पूछ लीजिएगा, तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं देखते हैं स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। ईगल पे बात करते, ईगल तो चल रहा है, एक कंडीशन मैं बताऊंगा उसके बाद। हाँ, एफएल पे चलते हैं। अच्छा, स्विंग डे स्ट्रैटेजी पे एक जो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्ट है, जो मैं लोगों से बात करके समझ पा रहा हूँ, या जो मुझे समझ में आता है, स्विंग डे स्ट्रैटेजीज पे जो स्टॉक स्कैन्स करके आता है, इट्स नॉट फॉर द सेम डे। वो सिर्फ एक दिन के लिए या उस दिन के लिए नहीं आ रहा है, इट इज फॉर 2 डे to 20 days। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो कंडीशन है, जो उसका एंट्री कंडीशन है, वो अगर वेरी नेक्स्ट डे नहीं बनता है, तो यू कैन वेट फॉर 2 to 3 days कि आपका एंट्री कंडीशन बन रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद ही आप डिसीजन लो कि एंट्री लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स, अच्छे स्विंग ट्रेडर, स्मार्ट स्विंग ट्रेडर्स का कुछ क्वालिफिकेशन होता है सर। कुछ क्वालिफिकेशन क्या होता है? फर्स्ट, दे नेवर इन अ हरी, उनके अंदर हड़बड़ी नहीं होता। सेकेंड, दे बाय व्हेन द बाय एंट्री कंडीशन इज फुलफिल, सिर्फ वो स्कैन्स को देख के बाय नहीं करते, देयर मस्ट बी एंट्री कंडीशन। मेरा जैसे एक एंट्री कंडीशन है, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड, दे नो कि कंटिन्यूशन कहां तक रखना है, कब तक रखना है, मार्केट से रिलेट करके रखना है कि नहीं रखना है। फोर्थ, what is my stop loss या what should be my stop loss based on the capital or based on the RR in a both, वो उनको पता होता है जो स्मार्ट स्विंग ट्रेड होता है। फिफ्थ, एग्जिट, अगर उनका एसएल हिट होता है या उनका टारगेट हिट होता है ना, तो ग्रीडी नहीं होते, दे आर लेस ग्रीडी पीपल। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल वही है जो जिनके अंदर ग्रीडिंग कम है, जो ग्रीडी कम है। ग्रीडी पीपल्स अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, तो आपके अंदर लालच कम होना होगा। तो उनको पता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, मैं एग्जिट करना, मेरा काम खत्म। पहले स्विंग स्ट्रेटेजीज पे चलते, एफएल पे बात करते हैं थोड़ा। एफएल, एफएल पे देखते हैं, मैंने शायद हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है इसमें। अब देखिए, बहुत अच्छा स्कैन करके है, तो अब तो नेक्स्ट डे से रेड कैंडल बना लिया, तो क्या मेरा ये स्ट्रैटेजी पे नहीं काम नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट डे अगर किसी स्टॉक में जो स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग में आ जा रहा है, तो इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय ए गुड स्टॉक इन ए मिनिमम प्राइस, इन ए वेरी क्या बोलते उसको, प्राइस कम में या प्राइस करेक्शन के बाद, इन ए गुड एक्यूमुलेशन जोन के आसपास मिल रहा है। सो इफ यू आर स्विंग ट्रेडर, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको स्टॉक स्ट्रेटेजी में आया, बुल स्ट्रेटेजी में, और उसके नेक्स्ट डे अगर प्रॉफिट बुकिंग है, तो एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे उसका एक जोन बना लो आप लोग बाइंग सेलिंग का। ठीक है, अब इस वाले केस में स्विंग ट्रेडर डे चार्ट ही देखेंगे, वीकली नहीं देखना, डे चार्ट ही देखेंगे। ये रहा जैसे उसका बहुत अच्छा एक जोन है बाइंग का, तो ये जोन बना के बाइंग करेंगे। एसएल, इंटरडे ट्रेडर जिस कैंडल में एंट्री करेंगे उसके प्रीवियस कैंडल का लो भी ले सकते हैं, और या तो डे लो को भी ऐसे स्टॉप लॉस ले सकते हैं इंटरडे ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर स्टॉप लॉस हमेशा जिस, अगर रेंज पे बाई कर रहे हो तो स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और अगर आप रेंज पे नहीं बाय कर रहे हो, कंटिन्यूएशन पे बाई कर रहे हो, तो उस वीक का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये 2 चीज याद रखिएगा। तो एफएल में जैसे देखिए नेक्स्ट डे बुकिंग है, बट कंडीशन अभी भी बहुत अच्छा है, किसी भी तरीके का नेगेटिव कुछ नहीं है। तो ये आपका बाइंग जोन है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है गिरने में, तो ये कंडीशन है जहां पर आप बाई कर सकते हो, एक जोन में बाई कर सकते हो। स्विंग ट्रेडर कैन बाई इन जोन 2, आप जोन में भी बाई कर सकते हो, आपको एक ही प्राइस में बाई करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाई के ऊपर ही निकले तभी बाई करना, आप जोन में भी बाई कर सकते हो। एक और देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद सेशन एंड की तरफ जाना होगा मुझे। जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीक भी होपफुली शायद मेरा ही सेमिनार रहेगा, तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद, और ये स्टार्ट के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलते हैं, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं कीजिएगा कोई प्लीज। आफ्टर 8 सर, राजेश सर, आफ्टर 8।
स्विंग बुलिश स्ट्रेटेजीज पे चलते हैं, डब पे चलते हैं, डब पे किसी स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं। परफेक्ट मैच में नहीं है कोई। हाँ, आफ्टर 8 तक सारे सारे डेटा अपडेट हो जाते हैं। रिवर्सल में कुछ है क्या? नहीं, रिवर्सल में नहीं है। तो ठीक है, स्विंग के बुल स्ट्रेटेजी इसी में से किसी एक पे कर लेता हूँ मैं डिस्कशन। सीडीएसएल पे कर लेते हैं। सीडीएसएल सबका फेवरेट भी, मेरा फेवरेट स्टॉक है। सीडीएसएल पे कर लेते हैं। स्विंग स्ट्रेटेजी में एक चीज समझने की बात है सर, अगर आपको नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इंटरडे ट्रेडर्स के लिए नहीं बोल रहा मैं, स्विंग ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ। इसमें देखिए स्ट्रक्चर अच्छा है, नो डाउट। सुपर ट्रेंड भी बाइंग ही सिग्नल है। तो ये एक जोन के आसपास आप भी बाई कर सकते हो इसको, स्टॉप लॉस लगे इस वाले कैंडल को, एक अच्छा खासा बाई बनता है। स्विंग देखिए, एक स्विंग ट्रेडर जोन पे बाई कर सकते हैं। अच्छा, एक जो मैं बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मार्केट कंडीशन पे। बहुत टाइम ऐसा भी होता है ना कि मार्केट का जो सेटअप है बुल है, बट आप देखिएगा कंटिन्यू 6-7 दिन बुल रन देने के बाद मार्केट एक छोटा मोटा माइनर करेक्शन भी देता है, तो उस करेक्शन से डरना नहीं है। स्विंग स्ट्रेडर के लिए, स्विंग ट्रेडर के लिए वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का भी टाइम क्रिएट करता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं सीडीएसएल का चार्ट खोलता और मुझे आज का ट्रेड लेना होता, तो ये बहुत ही अच्छा करेक्शन करके एक छोटा सा माइनर प्रॉफिट बुकिंग करके मेरे बाइंग जोन के आसपास आ गया है। तो मैं एक जोन बना लेता 5 या 10%, 3 से 5% का, कि मैं इस रेंज में अगर स्टॉक आएगा मैं बाई करूंगा फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days, क्योंकि मेरे को 30 days तक स्टॉक रखना है। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर बहुत अच्छा डिफाइन है। एक बड़ा सा बुल कैंडल जो है ये वाला सर, ये मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था। अगर कभी आपको ऐसा सेटअप मिले कि एक अच्छा खासा बड़ा ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद स्टॉक फिर थोड़ा सा साइडवाइज फेज में जाए, फिर एक बुल कैंडल दे, तो हमेशा जो प्रीवियस बुल कैंडल होता है आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, वो बहुत फेवरेट आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। जैसे इस वाले केस में मेरा स्टॉप लॉस, ये जो बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल है, इसका लो जो है 2120 मेरा स्टॉप लॉस होता, क्योंकि मैं बाइंग इस रेंज पे करता, तो मेरा आरआर बहुत फेवरेबल होता। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। जो बचा एक सेशन रहा बुलिस का, वो मैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग बुलिस से स्टार्ट करेंगे। बुलिस स्ट्रेटेजीज पे ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो 2 मिनट हूं मैं, 3 मिनट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजी इंट्राडे और स्विंग में, पूछ सकता। पोजिशनल क्योंकि एक्सप्लेन नहीं किया तो पोजिशनल पे नहीं बात करेंगे। इंट्राडे और स्विंग में अगर किसी का कोई स्ट्रेटेजी है तो पूछ सकते हैं, स्ट्रेटेजी पे कोई डाउट हो। थैंक यू सर, थैंक यू दिलीप सर, आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई डाउट नहीं तो मैं सेशन एंड कर सकते हैं। होपफुली जो भी जितना भी टाइम था, जितना ही किया कि जो भी एक्सप्लेन करूं, समझा सकूं जितना भी नॉलेज मैंने किया। सो एंड करते हैं। अच्छा, एक से क्वेश्चन है इंटरडे। किरण जी का क्वेश्चन है, इंटरडे के लिए 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट देख सकते हैं क्या? इफ यू आर अ बिगनर और आप नया ट्रेडर हो तो आपको 15 मिनट चार्ट ही देखने चाहिए। अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो तो 5 मिनट का चार्ट भी देख सकते हो। 15 मिनट मेरा फेवरेट है, मैं 15 मिनट का सेटअप में ही देखता हूँ। 7-8 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं 15 मिनट के कैंडल पे ही देखता हूँ। हाई डिलीवरी इन द सेंस हाई लिक्विड स्टॉक सर। ऐसे स्टॉक जिनमें डिलीवरी परसेंटेज ट्रेडिंग के कंपेयर, जितना ट्रेडिंग होता है उसके कंपेयर में हाईली डिलीवर होता है, डिलीवरी ज्यादा होता है। हाईली डिलीवरी सर वो स्टॉक जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जिनपे डिलीवरी बहुत अच्छे से लिए जाते हैं। सर सीडीएसएल का बैंक, रुद्रा जी आप अगर क्लब मेंबर, क्लब में पूछ रहे, बाइंग रेंज मैं बता रहा था कि स्विंग ट्रेडर एक रेंज बना सकते हैं। जब भी सपोज कीजिए आज जो स्टॉक स्विंग ट्रेडर्स को आएंगे, आज 1 अगस्त है, आप आज आएंगे जो स्टॉक आपको स्विंग स्ट्रेटेजी पे, चाहे बुल आपको सॉरी स्विंग बुल स्ट्रेटेजीज पे जो स्टॉक्स आएंगे, आप उनका सेटअप देखो। अगर आप सेटअप से सेटिस्फाई हो तो आप एक रेंज बना सकते हो 3%, 5% का, कि मैं इस रेंज के प्राइस पे बाइंग करूंगा। रेंज कैसे डिसाइड करते हैं? उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जो बाइंग का आज का क्लोजिंग है वहां से 3 या 5% का जो एक प्राइस चेंज मोमेंटम होता है, सॉरी प्राइस चेंज हो सकता है। सपोज कीजिए आज कोई स्टॉक 100 पे बंद हुआ तो 95 to 100 मेरा बाइंग जोन होगा। रुद्रा जी समझ में आया आपको? बाइंग जोन कैसे आप डिसाइड करते हैं? जो आज का क्लोजिंग है उससे 3 से 5% डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी। अच्छा, वॉल्यूम एंड डिलीवरी समझा सर, समझा दे रहा हूँ। वॉल्यूम का मतलब होता है सर, बट विश्वास जी, कि एक स्टॉक पे सपोज कीजिए आज 500 लोग खरीदने या 500 लोग बेचने के लिए है, ठीक है।
उसमें बहुत सारे, अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन, बहुत लंबा टॉपिक है, फिर भी सपोज कीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपए मेरे डीमेट अकाउंट पे, पर मैंने रिलायंस के 1 लाख के शेयर बाय कर लिए, ठीक है। कैसे भाई, वो बाइंग सेलिंग का एक ब्रोकर का कॉन्सेप्ट है, वो बाद में एक्सप्लेन कर दूं, इन्हें छोटा मोटा समझा दो। तो मैंने 10,000 मेरे पास कैपेसिटी है, और मैंने ट्रेडिंग किया 1 लाख का, तो वो जो 1 लाख का ट्रेडिंग है वो वॉल्यूम हो गया, बट मेरा कैपेसिटी मैं 10,000 का ही बाई करके नेक्स्ट डे जा सकता हूँ, तो ये डिलीवरी हो गया जिसका जो मेरे अकाउंट में है, ठीक है। और वॉल्यूम मतलब जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है, ठीक है विश्वास, ये सिंपल में मैंने आपको समझाया। इसको अगर डीपली देखने जाएंगे तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा समझने का कॉन्सेप्ट है। सिंपल में वॉल्यूम मीन्स जो डेली जो इंटरडे में ट्रेड हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रही है, डिलीवरी जो एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट पे ट्रांसफर हो रहा है। इंडेक्स, हम लोग स्ट्रेटेजीज पे इंडेक्स नहीं आते सर, संतोष जी, इंडेक्स नहीं आते। थैंक यू सर, आपको अच्छा लगा, थैंक यू। कविता जी बताने वाला था पोजीशन, बट टाइम लिमिट है, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पक्का बता दूंगा। इंटरनेट ट्रेड लेते वक्त हमेशा याद रखना कि निफ्टी 50 अगर प्लस में खुल रहा है तो ही बुलिश ट्रेड लेना, निफ्टी 50 अगर नेगेटिव में खुल रहा है तो बुलिश ट्रेड नहीं लेने हैं नितिन जी। और अगर एक दूसरा, कभी भी अगर आपको इंटरडे में ट्रेड लेना, पहले 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल में बाई नहीं करना है। थर्ड, कभी भी गैप अप में बाइंग नहीं करना है, वेट करना है 15 मिनट उस कैंडल को देना का, 15 मिनट उस कैंडल हाई की तरफ बंद होगा तभी बाई करना है, गैप अप में बाई नहीं करना। फोर्थ, अगर कोई स्टॉक 10% आपके प्री ओपनिंग मार्केट में खुल जाए उस पर ट्रेड नहीं लेना, ठीक है नितिन जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आप लोग को अच्छा लगा, थैंक यू। मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी इंट्राडे सॉरी स्विंग ट्रेड के लिए ईगल है। 1 मंथ स्विंग ट्रेड के लिए कौन सा सर, डेली देख सकते हैं। थैंक यू, आप सबको अच्छा लगा। हाउ कैन वी गेट बीटीएसटी, सर आप ईगल देख सकते हैं, ईगल स्ट्रेटेजी इज वेरी गुड फॉर कविता जी, ईगल स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है जो आपको बीटीएसटी सर आपको। मेरा डव है सर, मेरा ईगल है, ईगल ईगल मेरा बहुत फेवरेट है, Hi, ठीक है रुद्र जी, Rajuji. थैंक यू। Sorry for the stop, but the Zoom will be getting disconnected in the next 3 minutes. You can end the नहीं session बिल्कुल now. बिल्कुल, एंड थैंक यू एंड कर सकते हैं, थैंक यू।